Good evening, everyone. Good evening. Good evening, Vicky sir, Sonia ma'am. Good evening. कैसे हैं सभी? Okay. So any doubt in previous session? Very good, Sonia ma'am. Any doubt in previous session? Any doubt? We have discussed the control structure, break and loop. I hope आप mock test भी दे रहे हैं आप लोग सभी. और यदि mock test में भी कोई doubt आता है तो वो आप मुझसे discuss कर सकते हो. ठीक है? चलिए. Any doubt? Okay, so let's start today's session. क्या पूछ रहे हैं? हेलो. 60 रुपीज की 70 हो गए. छोटा सा 70. Okay. So let's start today's session. Today we are going to continue with the array. Last session में आपने control structure देखा, that is your if else, ठीक है, if else and switch. And then we have seen the loop. तो loop में आपका था for loop, while loop and the do while loop. ठीक है, तो ये discussion हमने already किया हुआ है. Now array. Can you give me the definition of the array? ठीक है, can you give me, what do you think, what is the definition of array? ठीक है, array क्या होता है, what is array? What is array? So देखिए, when we are discussing about the built-in data type, so we have integer data type, we have character data type, float data type is there, but I am able to declare only one variable at a time. ठीक है, या फिर मैं यदि मल्टीपल भी डिक्लेयर कर रही हूँ, so I can declare up to 10 data type. Now if, ठीक है, maximum I can declare any number of variable, but suppose if we want to perform the same operation over the similar data, the same operation over the similar data, so what we can do, we can do the grouping of data. ठीक है, we can make the grouping of data, or we can make a collection of data. That collection of data of similar type,
ठीक है. अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा. सो लाइक इफ यू आर राइटिंग इंटीजर A10, इसका मीनिंग क्या होगा? Here we have collection of the 10 data item whose type is integer and we will perform similar operation on them. ठीक है, हम इन पर क्या करेंगे? सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. सो यदि अरे को मैं डिफाइन करती हूँ इन सिंपल वर्ड, इट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा. हाउ टू डिक्लेयर द डेटा अरे. ठीक है, सी प्रोग्रामिंग की बात हो रही है. हाउ टू डिक्लेयर द डेटा? So here we have integer, then array name should be given A, or I want to give P, if I want to give yes, I can give anything. ठीक है, whatever is my requirement, I can assign that name. ठीक है, I can assign that name. So I have assigned the array name array, and then I'm in the square bracket, I will specify the size of array. ठीक है, आई विल स्पेसिफाई द साइज ऑफ अरे, जिसको आप सबस्क्रिप्ट इंडेक्स साइज या साइज ऑफ अरे भी बोलते हो. सो इफ आई एम राइटिंग हियर 10, व्हेन वी विल राइट दिस, दिस इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन ऑफ द अरे. ये क्या हो रहा है? डिक्लेरेशन ऑफ अरे. ये क्या बना? डिक्लेरेशन ऑफ अरे. सो व्हाट विल हैपन इन मेमोरी लोकेशन. ठीक है, इन मेमोरी लोकेशन इट इज ऑफ इंटीजर टाइप. तो सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो कंपाइलर है वो 2 बाइट सपोर्ट करता है. So since we have array of 10 element, total memory will be allocated is 10 into 2, that is 20 byte. ठीक है, 20 byte का memory allocate होगा. 20 byte का memory allocate होगा. Got it? And the indexing और जो location है वो कहाँ से start होगा? It will start from 0 to 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 9 index, 10 location, and every location have 2 byte. So contiguous 20 byte memory will be allocated. So आपको याद रखना है, जो अरे होता है it got the contiguous memory location. It is stored in the consecutive memory location. एक consecutive memory location में store होता है. ठीक है, and अरे नेम इज पॉइंटर टू द फर्स्ट लोकेशन. ये मैं आपको भी समझाऊंगी जब मैं पॉइंटर पढ़ाऊंगी आपको. ठीक है, सो दिस इज योर अरे. एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए कि वेदर एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और नॉट. एंड हियर वी हैव सोनिया मैम, शालिनी मैम, मोहित सर एंड श्रेया मैम. ठीक है, विशाल सर इज ऑल्सो हियर. सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ द अरे. क्लियर है कॉन्सेप्ट अरे का, या और एग्जांपल दूं? कॉन्सेप्ट ऑफ अरे. yes, thank you. So see, here is one more example of character array. बहुत ज्यादा बताना नहीं होगा. what is this? 200, 201, 202. so we have assumed that character array, character का size है 1 byte. so if I am creating the array of size 10, 1 byte will be allocated. 1 byte will be allocated for each element. So total 10 byte memory will be allocated. 10 byte memory will be allocated. 200, very good, Vicky sir. 200, 201, 202, 203 and so on. It is representing the memory address. ठीक है, ये क्या represent कर रहा है? It is representing the memory address. ठीक है, it is representing the memory address. So 200, 201 and so on. जनरली हम इसको अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, ये अज्यूमशन है कि 200 इज अ मेमोरी लोकेशन व्हेन द फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड. सो एट 201 सेकंड एलिमेंट इज स्टोर्ड, एट 202 थर्ड एलिमेंट इज स्टोर्ड, एट 203 फोर्थ एलिमेंट इज स्टोर्ड. ओके, फोर्थ एलिमेंट इज स्टोर्ड. नाउ टाइप्स ऑफ अरे यदि आप बात करें, so we categorize into 2 category, one dimensional array and multi-dimensional array. In multi-dimension we could have 2 dimension, we could have 3 dimension, we could have more than 3 dimension. ठीक है, so अच्छा, एक लिमिटेशन है. यदि आप सी में बात करें, जैसे मैं आपको प्रोग्रामिंग ही बताती हूँ. ठीक है, प्रोग्राम हम एक तैयार कर लेते हैं यहाँ पर कि सपोज वी हैव इंटीजर मैन
एंड हमने यहाँ पर एक अरे डिक्लेयर किया इंटीजर ए। अच्छा, आई कैन इनिशियलाइज द अरे, मैं इस तरीके से इनिशियलाइज भी कर सकती हूँ। ओके, बट व्हेन आई वांट टू प्रिंट द अरे, जब मुझे प्रिंट करना है, आई नीड फॉर लूप। ठीक है, मुझे यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, आई नीड द फॉर लूप, आई नीड फॉर लूप। आई थिंक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, कर्ली नहीं आएगा, पाइथन के साथ मिक्स हो गए हैं सिंटेक्स। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, इन पाइथन देयर इज नो आरे, वहां पर लिस्ट और डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सो यस कर्ली ब्रैकेट ठीक है। नाउ वी रिक्वायर्ड अ फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप, आई एम डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इंटीजर आई, इंटीजर आई फॉर इंडेक्सिंग। ठीक है, फॉर इंडेक्सिंग, फॉर आई। ठीक है, आई शुड स्टार्ट विद 0, आई शुड बी लेस देन, ठीक है, 5 ले लेती हूँ, एंड देन वी हैव आई प्लस प्लस, I plus plus, and then we have print f। चलिए आप बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। What will be the output? What will be the output? Missing loop। ठीक है, पहली चीज तो इनिशियलाइजेशन में हो जाएगा। ठीक है, वी कैन नॉट हैव, अच्छा हाँ, यहाँ इस तरीके से लिखना होगा। ओके, आई, हाँ जी करेक्ट शार्ली मैम। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल मिसिंग था। चलो, नाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, नाउ इट इज वर्किंग। सो सी कैसे वर्किंग हो रहा है इनिशियली। ठीक है, इनिशियली अरे इज इनिशियलाइज। ठीक है, यहाँ आप इसको क्या बोलोगे, अरे डेफिनेशन, बिकॉज वी आर इनिशियलाइजिंग द अरे एज वेल, हम इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। नाउ फॉर आई, आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है, अप टू इट विल बी 5। ठीक है, 5 तक जाएगा और 4 तक, इट इज लेस देन 5, सो इट विल अप टू 4, 0 से लेकर 4 तक, एवरी टाइम वैल्यू ऑफ परसेंट डी, आई की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, एंड एलिमेंट इज आई प्रिंट होगा, करेंट वैल्यू ऑफ आई, एंड एट दैट लोकेशन वॉट एवर इज द वैल्यू इट इज गोइंग टू बी प्रिंटेड। सो 10, 20, 30, 40 ये आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इफ इट इज, हाँ, if it is 4, 0 to 4, because index is starting from 4। अच्छा, ये हमने अज्यूम किया, वी कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, वी कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 1, बट वो लॉजिक सही नहीं होगा।
नाउ सी इफ आई विल कीप इट इक्वल टू 5, विल इट वर्क? क्या ये वर्क करेगा? everyone please let me know, will it work, and if yes then what will be the result? ठीक है, if yes then what will be the result? We should start from 0 because in C programming index start from 0. Index starts from 0. C, C++, Python सभी में इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0. सो इट विल वर्क, देखते हैं. सो यस, देखिए टिल 4 आपको रिजल्ट क्या मिला? 10, 20, 30 एंड 40. बट व्हेन वी हैव द इंडेक्स 5, नाउ इट इज आउट ऑफ इंडेक्स, है ना? यदि पाइथन होता या जावा होता सो इट विल बी जनरेटिंग द एरर आउट ऑफ रेंज, but C does not support out of range and it will generate a garbage value. ये आपको एक गार्बेज रिजल्ट देगा. गॉट इट? समझ में आया? यदि मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट एफ लगा दूं, यदि मैं सिंपली प्रिंट एफ लगा दूं, सो इन सी देयर इज नो इंडेक्स चेकिंग. इंडेक्स चेकिंग नहीं होती है. आई कैन पुट 1, सो 1 विल, यस इट विल वर्क. ठीक है, ये भी वर्क करेगा. सो इट विल गिव द वैल्यू 20. ये आपको क्या दे रहा है? 20. ठीक है, नाउ इफ आई एम राइटिंग, ठीक है, ये आपको क्या देगा? 20. ठीक है, बट इन अरे इन सी प्रोग्रामिंग देयर इज नो आउट ऑफ इंडेक्स. ठीक है, कोई भी टेस्टिंग चेकिंग नहीं होती है. सो इफ यू विल राइट 10 हियर, स्टिल इट विल वर्क. ठीक है, अभी भी काम करेगा एंड विल गिव यू सम गार्बेज वैल्यू. ठीक है, आपको गार्बेज वैल्यू जनरेट करके देता है. इज इट क्लियर? सी इज नॉट चेक द वैलिडिटी. ठीक है, सी में आपका वैलिडिटी चेकिंग नहीं होता है. yes, C does not check the out of index range. It does not check out of index range. Okay, now see, यदि हमको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, साइज ऑफ लीनियर अरे, हाउ टू कैलकुलेट द साइज ऑफ लीनियर अरे. so in that question they will specify the upper bound. ठीक है, लाइक दे आर सेइंग कि अपर बाउंड कितना है. इस यहाँ जो इंडेक्स की बात है वो 9 है एंड इफ द लोअर बाउंड इज 1 है, देन व्हाट इज द साइज ऑफ अरे? व्हाट इज द साइज ऑफ अरे? तो साइज ऑफ अरे आपका हो जाएगा अपर बाउंड दैट इज 9 माइनस लोअर बाउंड प्लस 1. सो इट विल गिव यू 9 minus 1, 8 plus 1 will be the 9. will be 9. कैसे? ऑब्वियसली भाई 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और इंडेक्स कहाँ तक जा रहा है? इन अपर बाउंड ये बोल रहे हैं 9 है. ठीक है, सो द साइज ऑफ अरे क्या हो जाएगा? अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1. ठीक है, सो इट विल बी 9 minus 1. आंसर इज 9. और यदि आपसे पूछा जाए साइज ऑफ अरे इन बाइट्स, तो साइज ऑफ अरे इन बाइट्स इज, मल्टीप्लाई कर दीजिए डेटा टाइप से, जो अभी मैंने किया था कि साइज ऑफ अरे 10 था एंड द डेटा टाइप का साइज कितना था? 2 बाइट्स. सो 20 बाइट्स विल बी द टोटल मेमोरी दैट इज allocated टू द अरे. इट विल बी allocated टू द अरे. नाउ सी, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका इनिशियलाइजेशन. हमने देख लिया. ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऑफ द अरे. इनिशियलाइजेशन ऑफ द अरे, दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रिंग. ये आपका स्ट्रिंग है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए अब हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट आई टोल्ड यू. ठीक है, हमको सिर्फ इंडेक्स लिखना होता है. अरे का नाम लिखिए और इंडेक्स लिख दीजिए, जस्ट लाइक इन द एग्जाम्पल. ठीक है, आपने क्या लिखा? A5, है ना? वी आर राइटिंग A10. सो वी आर जस्ट स्पेसिफाइंग द इंडेक्स. with the help of index we can print the value that is present in the data in the array. so we just required to specify the subscript here. हमको सिर्फ सबस्क्रिप्ट स्पेसिफाई करना होता है. ठीक है, नाउ इट इज इम्पोर्टेंट. इट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? दे विल गिव यू द अरे, है ना? और फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द एड्रेस ऑफ, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट. मैं आपसे बोलूं A4 का एड्रेस क्या है? ठीक है, A4 का एड्रेस क्या है? सो फॉर्मूला ये रहेगा, एड्रेस ऑफ एलिमेंट इज गिवन बाय
बेस एड्रेस विल बी गिवन, द साइज ऑफ डेटा, ठीक है, जो भी डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो, एंड द इंडेक्स दैट यू वांट टू कैलकुलेट, ठीक है, दैट इंडेक्स यू वांट टू कैलकुलेट। सो सपोज आपसे बोला जा रहा है कि द बेस एड्रेस ऑफ अरे इज, बेस एड्रेस का मीनिंग क्या होता है भाई, व्हाट इज बेस एड्रेस, द बेस एड्रेस ऑफ अरे इज, ठीक है, ये बोल रहे हैं 2000 है, 2000 है। देन दे आर सेइंग कि जो W है, द साइज ऑफ ईच एलिमेंट, इट इज इंटीजर और इट इज ऑफ 2 बाइट, ये 2 बाइट का है। देन फाइंड द एड्रेस लोकेशन ऑफ सिक्स एलिमेंट, ठीक है, सिक्स एलिमेंट, इंडेक्स आपको दिया है, तो आयत इसका जो इंडेक्स है वो है 6। तो व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ एलिमेंट, ना A6 का एड्रेस क्या बनेगा, A6 का एड्रेस क्या बनेगा, बेस एड्रेस 2000 है, ठीक है, साइज ऑफ डेटा टाइप इज 2 एंड 6, सो इट विल गिव यू 2000 प्लस 12 और इट विल गिव यू 2012। yes, very good, base address means starting address of array, starting address of array, or we can see कि the address of first element, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, address of first element, address of first element। okay, base address is the starting address, ठीक है। तो देखिए अभी मैं आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, तो इस बेस एड्रेस को हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर टिल नाउ, एनी डाउट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट थियोरेटिकली, ठीक है, थियोरेटिकली पहले बता दीजिए, क्लियर है भाई, कोई इशू? चलिए, थैंक यू। सो दिस इज व्हाट सम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कि what are the insertion at a new element in array can be done in two way, ठीक है, insertion we can do at in two different way। so first we can do at the end of the array, or we can insert at the required position, like if you have this array, ठीक है, and currently array is like of size 5, 10, 20 is filled, so next element I can easily add at the location A2, ठीक है, मैं इजीली यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ, इट कैन बी डन इजीली। बट सपोज नाउ दिस इज माय अरे, ठीक है, ये आपका अरे है, दिस इज द करेंट पोजीशन और करेंट स्टेटस ऑफ अरे। नाउ आई वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट एट A1 पोजीशन, है ना, तो क्या करना होगा, आई नीड टू परफॉर्म द शिफ्ट ऑपरेशन, मुझे 20 को शिफ्ट करना होगा, देन दिस लोकेशन विल बिकम एम्प्टी एंड देन आई कैन परफॉर्म द इंसर्शन, है ना। तो ये दो तरीके से आप इंसर्शन कर सकते हो, इंसर्शन एट द एंड ऑफ अरे, इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ अरे कैन बी इजीली डन प्रोवाइडेड memory space allocated for the array is large enough to accommodate the additional element। यदि space है, if the memory is available, then we can easily add the element at the end। but if we want to insert at required position, जैसे मैंने बोला फर्स्ट इंडेक्स पर डालिए, but already some data is there, suppose इस तरीके से status होता, and I want to insert at the A1 location, so I need to shift 30, then I need to shift 20 as well। so inserting an element at the required position of the array, element must be moved downwards through the new location to accommodate the new element। so sometime देखिए फर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही रहती है, in the first case it is the complexity is order of 1 because we are inserting at the last position, but here we are performing the shift operation, so complexity will become order of n, ठीक है, complexity क्या हो जाएगी, order of n। एनी डाउट, क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली अबाउट द डिलीशन, सिमिलरली द डिलीशन, so if we want to perform deletion from the end of the array, again there is no difficulty, again there is no difficulty, ठीक है, so we can easily perform the deletion and complexity is order of 1। but if we want to delete from required position,
then again we need to shift the element, फिर से आपको shifting perform करना होगा. I want to delete 20, I need to shift 30 and 40 so that I can utilize the empty space, है ना, so that I can utilize the empty space. So again the complexity will become order of n. Again complexity कितना हो जाएगा, order of n. So these are the some concept of one dimensional array. ठीक है, किसके कॉन्सेप्ट है, वन के भी है, एंड इट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू द टू डायमेंशनल array. It will also applicable to the two dimensional array. Okay, now we have another category is multi-dimensional array. ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी क्या बन जाती है आपके, मल्टी डायमेंशनल अरे. So this is one dimension. Now definition of multi-dimension, it is the array of array. ठीक है, ये क्या होता है, it is a array of array, or we can say it is array of array. 3 dimension में आप क्या बोल रहे हो, it is array of array. So if we have more than one subscript, more than one indexing will be there, then we will call it multi-dimension. होता कैसे है, like यदि हम 2 डायमेंशन की बात करें, so this is what सिंगल डायमेंशन अरे. ये आपका एक सिंगल डायमेंशन अरे बना, इट हैव द 10 एलिमेंट. ठीक है, 0 से लेकर अप टू 9, 0 to 9. देन अगेन वी हैव 0 to 9 अरे विल बी देयर. ठीक है, अगेन वी हैव 0 to 9 अरे. इनका इंडेक्सिंग भी होगा 0 to 9, फिर नेक्स्ट इंडेक्स होगा 0 to 9. सो वी हैव 2 डायमेंशन अरे, दैट इज अरे ऑफ अरे. एक क्या बन रहा है, अरे ऑफ अरे. गॉट इट, समझ में आया कॉन्सेप्ट ना, वैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो मुझे नहीं लगता. सो इफ वी टॉक अबाउट द 2 डायमेंशन अरे, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, बट पहले कंफर्म कर दीजिए इफ यू हैव एनी डाउट. है ना. नाउ देखिए, वी हैव 2 टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. अज्यूम दिस, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव अरे. नाउ इंडेक्सिंग कैसे होता है, इट इज 0th रो, ये आपकी 0th रो है. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट रो है, इंडेक्स 0 से रिप्रेजेंट होगी. सेकेंड रो रिप्रेजेंटेड बाय इंडेक्स 1, थर्ड रो इज रिप्रेजेंटेड बाय इंडेक्स 2. Similarly, first column is represented by 0, second column is represented by 1, and the third column is represented by 2. ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या बोल सकती हूँ कि दिस इज व्हाट द इंडेक्स 0 0. जब आप 2 डायमेंशन की बात करते हो, सो यू आर राइटिंग द इंडेक्स लाइक 0 and 0, we represent like this. ठीक है, और this will become, this is what row, ये आपका रो बनता है, this is your column, ये आपका कॉलम है. so this is your first row, first column, then first row, second column, first row, third column, then you have second row, first column, second row, second column, second row, third column, then you have third row, first column, third row, second column, third row, third column. so इस तरीके से आपका इंडेक्स प्रिपेयर होता है. एनी डाउट? ठीक है. नाउ we have 2 type of implementation. First is called the row measure implementation, and another is called the column measure implementation. First is called the row measure implementation. Meaning is that first we will store the first row, element of the first row, then we will store element of second row, then we will store the element of third row in the memory. This is the picture of memory. ठीक है, memory representation आप बता रहे हो. So now I will store the element 0 0, then 0 1, then 0 2. Then we will store 1 0, 1 1 and 1 2. Now देखिए,
So this is called the row major implementation. This is what called the row major implementation. In column major, what will happen? Like this is the first column, 0 0, then you have 1 0, then 2 0. So we will store first column, then first column, then we will store the second column, okay? Then we will store the second column, then we will store the second column. So this is called the column major implementation. Now why we are learning these two? Why we are learning? Because basis on the implementation or memory implementation of array, the location of element is changing, yes or no? ठीक है, आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन तो सेम है, फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन सेम है, बट फॉर द एलिमेंट 2 0 ये कौन सा पोजीशन बना? तो थर्ड पोजीशन. एंड इन द प्रीवियस एग्जांपल 2 0 का लोकेशन देखिए, ठीक है, 2 0 का लोकेशन क्या बन रहा है? दिस वन. तो according to the implementation the position of element is changed into the memory. ठीक है, क्या मेमोरी में चेंज होता है. So that's why for the address calculation we should know whether the implementation is row major or column major. Implementation row major है या column major है, I should know, then only I can do the calculation of address of any element. If in exam it is given then we have to consider that one. ठीक है, यदि रो मेजर लिखा होगा तो रो मेजर ले लेंगे, कॉलम मेजर लिखा होगा तो कॉलम मेजर. इफ नथिंग इज गिवन, ठीक है, इफ नथिंग इज गिवन देन अज्यूम. आप बताइए क्या अज्यूम करेंगे? तब तक मैं आपको फॉर्मूला डिस्कस कर लेती हूँ. ठीक है, सो इन द रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन, in the row major implementation this is the address. B is what? Base address. B आपका होता है base address. W is the size of data type. ठीक है, size of data type. Then N row major implementation है, ठीक है, row major implementation है. So N is representing the number of column, number of column. I is the position. जैसे मैं आपको बोलूं कि calculate the location 8 and 15 और टोटल अरे की साइज है 8 20 20. अरे साइज है 8 20 20. ठीक है, तो इन दिस केस आई वैल्यू विल बी 10. आई क्या हो जाएगा? 10. जे वैल्यू विल बी 15. सो नाउ आई इज 10 minus the lower bound. Nothing is given, we will assume it 0. The lower bound of L2, lower bound of column, ठीक है, ये होगा jth index, that is 15 minus 0. Got it? क्लियर है भाई? फॉर्मूला क्लियर है? इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है. ठीक है, सो सपोज वी हैव अ प्रॉब्लम. फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप, अभी मैं फिर से बताती हूँ. हमने कहा कि वी हैव an array of size data 20 and 50. Request the byte of storage. The base address, ठीक है, base of address भी given है. Base address is equal to 2000 and location आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, लोकेशन फाइंड आउट करनी है. सपोज डेटा 10 10 की, डेटा 10 10 की, ठीक है, 10 10. मैम देखिए, इन रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ठीक है, लोकेशन ऑफ डेटा 10 10. ठीक है, कैसे देंगे? डेटा 10 10 आई शुड हैव बेस एड्रेस लीजिए. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर डेटा साइज, डेटा टाइप का साइज सपोज 5 दिया हुआ है, जो W दिया है. डेटा टाइप साइज इज, सपोज इट इज 5.
तो बेस एड्रेस प्लस w, ठीक है, w द डेटा टाइप साइज इनटू n is the number of column, n is the number of column, 20 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो, 50 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम, सो नंबर ऑफ कॉलम एंड इनटू i, i is the index that I want to calculate, ठीक है, i क्या होगा, index that I want to calculate, and j is the index for the column, so i का वैल्यू होगा 10, j will also be 10, so i minus l1 मतलब लोअर बाउंड ऑफ द रो, it will be obviously 0 since nothing is given, and plus it will become j minus l2, j minus l2, put the value, base address कितना है 2000 है, w का वैल्यू कितना है 5 है, n is a number of column is 50, i का वैल्यू कितना दिया है भाई 10 है, 10 minus l1 nothing is given, we will assume 0 plus, ठीक है, j minus 10, j is again 10 minus l2 nothing is given, it will be 0, तो ये बनेगा 2000 plus 5 into 50, 10 minus, ठीक है, 10 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 0, सो इट विल बी 10 प्लस 10, ठीक है, क्या हो जाएगा 2000 प्लस 5 इंटू 500 प्लस 10 या 50 और मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो इट विल गिव यू 505 एंड 25, तो एड्रेस लोकेशन क्या आएगा आपका, ठीक है, एड्रेस लोकेशन विल बी 4550, इज इट क्लियर, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है, Sonia ma'am, Shalini ma'am, everyone, please let me know. Is it clear? Clear है भाई? ओके, देखिए क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, हमारे पास यहाँ फॉर्मूला हमको यूज करना है, फॉर्मूला हमको यूज करना है, तो आपको एग्जाम में सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ठीक है, क्या क्या गिवन होगा, द बेस एड्रेस ऑफ द अरे, ठीक है, बेस एड्रेस ऑफ अरे, हमने क्या कहा कि इस तरीके से आपका रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है, रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन में फर्स्ट रो आप स्टोर करते हो, देन यू स्टोर द सेकेंड रो, देन थर्ड रो एंड देन फोर्थ रो एंड सो ऑन, सो बेस एड्रेस सॉरी एड्रेस ऑफ एनी रैंडम एलिमेंट, मुझे किसी भी एलिमेंट का यदि एड्रेस कैलकुलेट करना हो, सो हाउ वी कैन डू दैट कैलकुलेशन, है ना, सो एड्रेस फॉर टू डायमेंशन अरे व्हेन द इम्प्लीमेंटेशन इज रो मेजर, ठीक है, व्हेन द इम्प्लीमेंटेशन इज रो मेजर, सो एड्रेस ऑफ एलिमेंट इज गिवन बाय ए आई जे, ये आपका फॉर्मूला है, इट विल बी गिवन बाय द बेस एड्रेस, ठीक है, बेस एड्रेस
इसमें आप ऐड करेंगे W, द साइज ऑफ अरे टाइप, ठीक है। जैसे मैं यहाँ इंटीजर अरे डिक्लेयर करती हूँ तो साइज क्या हो जाएगा 2. इफ आई एम डिक्लेयरिंग इट फ्लोट, फ्लोट अरे इज देयर, सो W will become 4. If we are declaring character array, it will become 1, है ना। So W is representing the size of array multiplied with n. N is what? Number of column, because it is a row measure implementation. ये पहला कॉलम खत्म हुआ, फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इट विल बिकम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इट विल बिकम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इट विल बिकम सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। सो वी आर मल्टीप्लाइंग विद द नंबर ऑफ कॉलम। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम into I. I is the index that I want to calculate the location. Minus L1. L1 होता है the lower bound of the row. ठीक है, जनरली गिवन नहीं होता है the lower bound of row. So we are हम माइनस करते हैं माइनस L1 प्लस J माइनस L2, J माइनस L2. दिस इज द फॉर्मूला, याद रखना होगा एज इट इज, ठीक है। एवरीथिंग विल बी गिवन कि बेस एड्रेस कितना है, W कितना है, N क्या है ना। जैसे आपको देते हैं कि अरे का साइज, अरे जो आपने टोटल डिफाइन किया है, इट इज ऑफ साइज, सपोज अज्यूम कर लेते हैं 20 and 30 है, तो नंबर ऑफ रो विल बिकम 20, नंबर ऑफ कॉलम विल बिकम 30. आई एम सेइंग कि इस अरे में आप 12 या 15 कॉमा 10 का एड्रेस निकालिए, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 15, जे का वैल्यू कितना होगा 10. नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है। सपोज बेस एड्रेस इज गिवन 4000, बेस एड्रेस 4000 है एंड द साइज ऑफ डेटा टाइप इज 4 बाइट. सारे वैल्यूज पुट करिए, बेस एड्रेस 4000 होगा, W कितना होगा 4 बाइट होगा, नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, इट विल बी 30, आई का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 15 बिकॉज आई वांट टू चेक 15, माइनस L1 विल बी 0 प्लस J value is 10 minus L2, nothing is given, so it will be 0. So put this value and solve it. 4000 plus 4 30, ठीक है। तो ब्रैकेट में सॉल्व करना है, 15 माइनस 0 विल बी 15 प्लस 10, ठीक है, प्लस 10. So now when you will solve 4000 plus 4, 30 into 15 450 and then 460 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए. आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। सो इफ रो मेजर क्लियर है, सिमिलरली वी हैव द कैलकुलेशन फॉर द कॉलम मेजर, ठीक है। सिमिलरली वी हैव कैलकुलेशन फॉर द कॉलम मेजर. सो एड्रेस ऑफ एलिमेंट इन द कॉलम मेजर क्या चेंज होता है, देखिए बेस एड्रेस विल रिमेन सेम, बेस एड्रेस सेम रहेगा. W, द डेटा टाइप विल रिमेन सेम. इंस्टेड ऑफ राइटिंग n is number of column, I am writing m is now number of row, ठीक है, total number of rows. First I am writing number of row multiplied with jth column minus L2, ठीक है, plus I minus L1, plus I minus L1. क्लियर है भाई? विशाल सर, है ना। चलिए, तो कॉलम का क्वेश्चन कर पाएंगे यदि मैं आपको बोलूं कि कॉलम मेजर इंप्लीमेंट करिए? कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन वी कैन डू ना भाई? सभी लोग रिस्पांस देते चलें, सब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ताकि आपको दोबारा ये चीजें ना देखना पड़े.
दोबारा ये चीजें ना देखना पड़े, इतना क्लास को यूटिलाइज करिए भाई। आप क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे तो फिर हम कैसे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी हैव limitation of the array. Can you tell me what are the limitation of the array? ठीक है, what are the limitation of the array? What are the limitation of array? What are the limitation of array? Akshita ma'am, Vishal sir, Shreya ma'am, Shali ma'am, and Sonia ma'am. Okay. What are the limitation of the array? So see, ठीक है, array cannot uh, first of all we have to declare the size in advance. ठीक है, whatever the size of array is there we have to declare it in advance. ठीक है, we cannot change the size. Yes, we cannot shrink it, we cannot, ठीक है, हम रन टाइम पर भी चेंज नहीं कर सकते, इट इज स्टैटिक है ना, वी कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ अरे, सो वी कैन नॉट श्रिंक इट, वी कैन नॉट ग्रो इट। ठीक है, ना तो हम श्रिंक कर सकते हैं और ना ही ग्रो कर सकते हैं, इट कांट ग्रो। वेरी गुड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द लिमिटेशन, ये आपका लिमिटेशन है। नाउ ये तो हमने देख लिया कि हाउ डज दिस प्रोग्राम विल वर्क। नाउ वी हैव द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज स्ट्रिंग। अभी मैंने बहुत कम पढ़ाया आपको अरे, अभी मैं और डिस्कस करूंगी व्हेन वी विल डिस्कस द पॉइंटर, है ना, और जो जो नए कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें हम डिस्कशन इंक्रीज कर देंगे। सो नाउ सी वी हैव स्ट्रिंग्स, है ना। नेक्स्ट क्या है, इंसर्शन एंड डिलीशन एलिमेंट इज नॉट इजी, एलिमेंट हैव टू बी shifted. Yes, yeah, if from the random position, from the random position insertion and deletion is not easier, end position से okay. Now see string, string क्या होता है, it is nothing, it is array of character. ठीक है, it is array of character. So whatever property we have discussed about the array is applicable to the string. जो भी प्रॉपर्टी आपने डिस्कस किया किसके लिए, अरे के लिए, दैट विल बी एप्लीकेबल टू द स्ट्रिंग, because in C we don't have any special data type for the string, we create the array of character to make the string. C में कोई भी स्पेशल डेटा टाइप नहीं है टू हैंडल द स्ट्रिंग। अच्छा, अब एक चीज देखिए, द टर्मिनेशन ऑफ स्ट्रिंग और एंड ऑफ स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नल कैरेक्टर। तो यदि आपने कोई अरे डिक्लेयर किया, ठीक है, जैसे मैसेज, मैसेज विल बी अरे करेक्टर मैसेज ऑफ साइज 5 ले लीजिए, ठीक है, या चलो 10 ले लेते हैं, है ना, 15। एंड इन दिस केस इफ यू आर डिक्लेयरिंग अ स्ट्रिंग, ठीक है, लाइक यू आर राइटिंग हेलो, हेलो, सो टोटल 6 बाइट मेमोरी विल बी गेट allocated। कितनी मेमोरी बाइट allocate होगी, इट विल बी allocated 6 बाइट, 6 बाइट, वन फॉर द नल कैरेक्टर, वन फॉर द नल कैरेक्टर। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन मेमोरी होती है द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस 1। ठीक है, एक एडिशनल कैरेक्टर यू नीड टू स्टोर, दैट इज फॉर द एंड ऑफ स्ट्रिंग। इसको आप नल कैरेक्टर भी बोलते हैं, नल कैरेक्टर भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपका क्या होगा, नल कैरेक्टर होगा। लेकिन आप लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देखोगे तो वो 5 है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है, वो 5 है, बट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन मेमोरी विल बी प्लस 1, वन फॉर द नल कैरेक्टर, वन फॉर द नल कैरेक्टर। सो वी कैन इनिशियलाइज स्ट्रिंग लाइक दिस।
ठीक है, आप इस तरीके से डिक्लेयर कर दीजिए कैरेक्टर मंथ, आई एम इनिशियलाइजिंग इट विद डिफॉल्ट वैल्यूज, मैं खुद डिफॉल्ट वैल्यू दे रही हूँ ना. सो आई एम ऑल्सो स्पेसिफाइंग 0 for the null character. This string stored in memory as ASCII code. Yes, m का ASCII वैल्यू स्टोर होगा, a का ASCII वैल्यू स्टोर होगा, y का ASCII वैल्यू स्टोर होगा एंड 0 का ASCII वैल्यू यहाँ स्टोर होगा. 0 will store, that is the ASCII value of null character. ठीक है, null character का ASCII वैल्यू क्या होता है? 0. null character का ASCII वैल्यू क्या होता है? 0. तो जैसे ही आपने ये डिक्लेरेशन किया, ठीक है, जैसे ही आपने डिक्लेरेशन किया, होगा क्या? m की जो भी ASCII वैल्यू है वो मेमोरी में स्टोर होगी. whatever a value of a, ठीक है, ASCII वैल्यू विल स्टोर हियर. मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता देती हूँ. सो हियर वी हैव, ठीक है, कैरेक्टर अरे. कैरेक्टर अरे जब आपने बोला, ठीक है, ए नहीं क्या ले रहे हैं? मंथ इक्वल टू, वी आर राइटिंग कर्ली ब्रैकेट, सिंगल कोट्स. यहाँ आप सिंगल कोट्स में लिखते हो, ठीक है, एम देन कॉमा ए देन कॉमा वाई, ठीक है. एंड यदि आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे 0, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है. सो हियर वी हैव 0 एंड द कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड. दिस इज डन. नाउ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट एफ. व्हेन वी विल ट्राई टू प्रिंट द वैल्यू, ठीक है, तो यदि आप लिखते हो %d, ठीक है, यू कैन चेक व्हाट वैल्यू इज स्टोरिंग एट दिस लोकेशन. सो मंथ, सपोज ए की बात कर लेते हैं, मंथ एट वन लोकेशन. देखिए क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट होगा. सो रन इट. क्या हो गया? ए वाई सॉरी, इसको इस तरीके से लिखना होगा. ओके, सो नाउ द वैल्यू ऑफ ए इज 97. द वैल्यू ऑफ ए इज 97. गॉट इट? 97 मिला ASCII वैल्यू. इफ यू विल राइट सी हियर, ठीक है, क्या आएगा देख लेते हैं. इट विल गिव यू द लेटर. ठीक है, तो एक्चुअल जो स्टोरेज होता है वो होती है ASCII वैल्यू. इफ यू आर राइटिंग, ठीक है, देखो सी के साथ आप लिख लो इंडेक्स वैल्यू 3, क्या रिजल्ट मिलेगा? 0 1 2 3. इट इज अ नल कैरेक्टर. ये आपका नल कैरेक्टर है, ठीक है, इट इज अ नल कैरेक्टर. एंड ऑफ द स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है. इफ यू वांट यू कैन प्रिंट द लेंथ ऑफ मंथ एज वेल. ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं लेंथ फंक्शन. यहां तक कोई डाउट? डन है, ठीक है. सपोज वी आर नॉट स्पेसिफाइंग 0, देन व्हाट विल हैपन? यदि आप स्पेसिफाई ना करो तो नाउ एनी रैंडम वैल्यू विल बी टेकन बाय द कंपाइलर. अपनी रैंडम वैल्यू ले रहा है, ठीक है, कंपाइलर इज टेकिंग द रैंडम कैरेक्टर. ठीक है, राइट d, %d एंड देन ट्राई टू प्रिंट 3. एरर तो नहीं आएगा, ठीक है, बट इट इज टेकिंग द रैंडम वैल्यू. ठीक है, तो एक कंपाइलर फिर हैंडल करता है यदि आपने वैल्यू नहीं दी है, टर्मिनेशन नहीं स्पेसिफाई किया, देन इट विल बी हैंडल्ड बाय द कंपाइलर. तब कंपाइलर हैंडल करेगा. सो कंपाइलर विल टेक, सपोज यू आर राइटिंग लाइक दिस, so compiler will take care of string ASCII code of the character of string in the memory and also store the null character as a terminator. Now it is the responsibility of compiler to specify the termination string. चलिए भाई रिपीट करना है, कुछ रिपीट करना है?
sir, see, I suppose I want to find the null character, sky value of null character. I will declare a character a, ठीक है, कोई भी character declare कर दीजिए. Initialize it with null character, ठीक है, null character से initialize करिए. Then printf, write down the %d, comma a, ठीक है. It will give you the स्काई वैल्यू ऑफ नल कैरेक्टर. ठीक है, अभी ये प्रिंट एफ ये नहीं चल रहा मेरा क्योंकि ये कमेंट करना होगा. ओके, सो नाउ वी हैव, व्हेन यू विल रन इट, you will get the sky value of null character, that is 0. You can have the sky value of any character, like मैं यदि यहाँ पर t लिख दूँ, ठीक है, या कैपिटल T लिख देती हूँ, and then I will try to print it, so it will give me the sky value of capital T. ये मुझे कैपिटल T की स्काई वैल्यू दे देगा. सो डिक्लेयर द कैरेक्टर एंड देन प्रिंट %d. %d will give you the sky value. क्लियर है? It will give you the sky value whatever you want. ठीक है, whatever you want you can initialize here and can have the sky value of that character. उसकी स्काई वैल्यू जैसे /n का स्काई वैल्यू है 10. okay, you can have that. now यदि क्लियर है, कोई भी क्वेरी नहीं है, so let's have some function. ठीक है, कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं. जैसे यहाँ पर एक फंक्शन है आपका, हम देते हैं. ठीक है, we have a function that is called the concatenation function. It is strcat. ठीक है, strcat, and it will concatenate the two different string. ठीक है, फर्स्ट को concatenate कर रहा है सपोज सेकंड से, and then we can print f. स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज होता है %s, कॉमा. ठीक है, लेट्स प्रिंट फर्स्ट. ठीक है, लेट्स प्रिंट फर्स्ट. सो देखिए क्या आंसर होगा, क्या आउटपुट होगा. ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट? कॉन्केटिनेशन, इट विल परफॉर्म द कॉन्केटिनेशन. सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है आपका. ओके, देख लेती हूँ. हाँ, आप जब तक आउटपुट बताइए, व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? आप यदि हम कॉन्केटिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सो व्हाट विल बी द फर्स्ट एंड व्हाट विल बी द सेकंड? ठीक है, सो इट इज हेलो एवरीवन. हेलो एवरीवन. देखिए जैसे ही आपने लिखा strcat फर्स्ट कॉमा सेकंड, व्हाट इज हैपनिंग? द सेकंड स्ट्रिंग इज कॉन्केटिनेटेड विद द फर्स्ट. तो जब आप फर्स्ट को प्रिंट कर रहे हो, व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रिंट द फर्स्ट, यू आर गेटिंग हेलो एवरीवन. नाउ इट इज कॉन्केटिनेटेड. क्या सेकंड स्ट्रिंग भी कॉन्केटिनेट होगी? क्या सेकंड स्ट्रिंग भी चेंज होगी? Please let me know whether the second string is also going to be changed. क्या second string भी change होगा? Let's check it. क्या second string भी change हो रहा है? So when we are printing second one, ठीक है, ये आपका है first one. ठीक है, this is your first string. ये आपकी first string है. ठीक है, ये आपकी है first string and देन वी हैव द सेकेंड स्ट्रिंग. ठीक है, सेकेंड स्ट्रिंग हम प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या ये भी चेंज हो रही है? ट्राई कर लेते हैं. सो यू कैन सी फर्स्ट आपकी बन रही है हेलो एवरीवन, बट द सेकेंड वन विल रिमेन एवरीवन ओनली. तो strcat क्या होती है? इट कॉन्केटिनेट द टू स्ट्रिंग. नाउ वी हैव वेरिएशन ऑफ strcat. ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का एक वेरिएशन है.
दैट इज कॉल्ड str ncat, ठीक है। तो हेयर हम स्पेसिफाई करेंगे कितने कैरेक्टर कॉन्केटिनेट करना है। सो आई विल राइट 4 कैरेक्टर, ठीक है, 4 कैरेक्टर। देखिए वर्क करता है कि नहीं। यस, देखो अब क्या हुआ, नाउ वी हैव हेलो and the 4 character from the second string is concatenated to the first one. Is it clear? Second से कितने कैरेक्टर कॉन्केटिनेट हुए, 4 कैरेक्टर हैज बीन कॉन्केटिनेटेड, ठीक है। सिर्फ 4 कैरेक्टर आपके यहाँ पर कॉन्केटिनेट होंगे। गॉट इट, समझ में आया। इट इज द वेरिएशन ऑफ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, इट इज स्ट्रिंग एंड कॉन्केटिनेशन। एंड क्या स्पेसिफाई कर रहा है, द नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट वी वांट टू concatenate here, number of character change कर लीजिए। suppose you are writing here I want to concatenate here I want to concatenate 6 character, can you tell me the output? अब क्या होगा, ठीक है, 6 character from the second string will get concatenated to the first string, है ना। so EVERYO ये आपका कॉन्केटिनेट हो जाएगा, ठीक है, कॉन्केटिनेट हो जाएगा। अच्छा चलिए, अभी मुझे बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है, और यदि ये पॉसिबल है तो आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है, बताइए क्या आउटपुट मिलेगा। इज इट पॉसिबल, एंड इफ इट इज पॉसिबल देन व्हाट विल बी द आउटपुट। व्हाट विल बी द आउटपुट। पहला चीज, यस इट इज पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल है। देन फर्स्ट आपका क्या मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट में आप प्रिंट कर रहे हो, फर्स्ट आपका है इट इज एल, एंड सेकेंड इज एवरीवन, ये पहले से था, एंड 3 कैरेक्टर फ्रॉम द फर्स्ट आर कॉन्केटिनेटेड टू द सेकेंड स्ट्रिंग, फर्स्ट आर कॉन्केटिनेटेड टू द सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है, ये आपके कॉन्केटिनेट हो गए इनटू द सेकेंड, इनटू द सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पर, कंपैरिजन, ठीक है, नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है यहाँ पर कंपैरिजन। इट इज द फंक्शन दैट विल कंपेयर द टू स्ट्रिंग, ठीक है। सो हियर यू हैव, डायरेक्टली देख लेते हैं आप, str कंपैरिजन विल कंपेयर द टू स्ट्रिंग, ठीक है, कंपेयर करता है, एंड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन होता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन होता है। सो इफ देख लीजिए, ठीक है, मेरे पास फर्स्ट स्ट्रिंग है, सपोज द सेकेंड स्ट्रिंग इज ऑल्सो हेलो, second string is also hello, okay, so what will happen, suppose we have comparison के लिए c variable ले लेते हैं integer, है ना, because it return the integer value, integer c, so c equal to आप क्या लिख रहे हो, c equal to strcmp for the comparison of first comma second, ठीक है, and then print the value of c, then print the value of c, ठीक है, देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, print the value of c, okay, print the value of c। so यदि स्ट्रिंग इक्वल है, यदि स्ट्रिंग इक्वल है, if the string is equal then the result will be 0, if the string is equal तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। बट इफ द स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल, ठीक है, सपोज इसको ले लेती हूं मैं, इट इज p, ठीक है, आपका क्या है, इट इज p, या स्मॉल h ले लेते हैं, स्मॉल h लेते हैं। सो इन दिस केस, ठीक है, नाउ देखो h ये है आपका 97, सॉरी स्मॉल h है, द वैल्यू ऑफ स्मॉल h, a sky value of small h is greater than the sky value of capital H, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा, द डिफरेंस विल बी गेट प्रिंटेड, ठीक है। तो देखिए क्या आ रहा है, इफ
if the ASCII value of the first is more than the ASCII value of second, then we will get a positive number. So we will say string is not equivalent, है ना. If the ASCII value of the first is greater than the ASCII value of second, then it will give you the positive number. ये आपको positive number देगा. लेकिन यदि इसका अपोजिट हो जाए, जैसे मैंने बोला यहाँ h है, ठीक है, यहाँ पर h है, ठीक है, यहाँ आपका h है, एंड देन यू हैव c इज हियर, ठीक है. अब देखिए अब क्या आएगा. सो नाउ इट विल गिव यू द नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, इट विल गिव यू द नेगेटिव वैल्यू. सो इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉलर देन द सेकेंड वन, देन द रिजल्ट विल बी नेगेटिव. रिजल्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है. सो दिस इज व्हाट द रूल ऑफ कंपैरिजन, ठीक है. ये रूल है, क्या है कि कंपेयर द टू स्ट्रिंग. इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द सेकेंड वन, इट विल रिटर्न द नंबर दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव. If the second string is greater, it return the number less than 0, है ना. If the string is equal, it will return 0. It will return 0. What if I want to do comparison of only n character? यदि सिर्फ n character का comparison करना है, then I will specify number of character that I want to do the comparison. ठीक है, I want to do the comparison of only 2. I want to do the comparison of only 2. ठीक है, तो कैसे वर्किंग होगा. इट विल ओनली कंपेयर द टू लेटर्स एच ई एच ई एच ई एच ई. ठीक है, सो देख लेते हैं क्या कोई फर्क आता है यदि मैं सेकंड को चेंज करती हूँ. सो यस, इट इज -4. ठीक है, सपोज मैं थर्ड को चेंज कर लेती हूँ. सपोज आई एम चेंजिंग द थर्ड वन, बट आई हैव स्पेसिफाइड ओनली कंपेयर द फर्स्ट टू, ओनली कंपेयर द फर्स्ट टू. तो क्या वर्किंग होगा. यस, इट इज ओनली कंपेयरिंग द फर्स्ट टू लेटर्स. नेगेटिव वैल्यू दे रहा है. इट डजंट मैटर व्हाट इज आफ्टर दिस, आफ्टर टू कैरेक्टर. आफ्टर टू कैरेक्टर क्या है ये मैटर नहीं कर रहा है. इट इज जस्ट मैचिंग द फर्स्ट टू लेटर्स. ठीक है, माइनस दे रहा है ना, सो इट इज नॉट इक्विवेलेंट. वी आर कंपेयरिंग द एंड लेटर्स. एक सेकेंड. It should be -4 दे रहा है ये. Okay. It is the -4. Then hello. ठीक है, सो ये आपको 0 दे रहा है. अच्छा, n नहीं लिखा ना, वही मैं बोल रही हूँ. str n, and if I will write p here, still it will print the 0. ठीक है, still it will print 0 because फर्स्ट टू लेटर आर मैचिंग. पहला जो लेटर है वो मैच हो रहा है. ठीक है, पहला जो 2 लेटर है वो मैच हो रहा है. इज इट क्लियर. सिमिलरली द लास्ट फंक्शन दैट वी हैव इज कॉपी फंक्शन. अलाउ द n नंबर ऑफ कैरेक्टर टू बी कॉपीड. ठीक है, कॉपी एंड str n कॉपी. सो it will simply copy the second string into the first one. Simply copy the second string into the first one. So here we are writing strcpy, and we will print first string. इसको हटा देते हैं. भाई समझ में आ रहा है, रिपीट करना है तो बता दीजिए. print f, then we have %s. ठीक है, %s to print the string that is first. जो फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हैं स्पेशली उनसे पूछ रही हूँ. ये 2 लाइन कमेंट कर देते हैं बिकॉज नाउ वी वांट टू परफॉर्म द कॉपी. ठीक है, वी वांट टू परफॉर्म द कॉपी ओनली. सो रन कर लीजिए. ठीक है, व्हेन यू विल रन दिस प्रोग्राम, %s, फर्स्ट इज hello, strcpy. कुछ इशू है, वी आर प्रिंटिंग फर्स्ट. चलिए, फॉर नाउ कॉन्सेप्ट क्लियर है. इट इज कॉपी द, ठीक है, वन स्ट्रिंग टू द अनदर, एंड str and cpy allow the n character to be copied. हाँ, हेलो आना चाहिए था. ठीक है, हेलो आना चाहिए था.
I have first is hello, second is haplo. So if I will copy strcpy, then strcpy, it will simply copy. Okay, so these are the function. Let me know any doubt here. ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट? ये आपका था अरे एंड स्ट्रिंग. ठीक है, अरे एंड स्ट्रिंग. अरे एंड स्ट्रिंग. स्टक है क्या भाई? स्टक है? मेरे एंड से तो नहीं है, प्लीज चेक. स्टक है? चलिए, नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं? सभी लोग प्रेजेंट हैं? नाउ इट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अक्षता मैम, विशाल सर, श्रेया मैम. हाँ, सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंटर. कैन यू टेल मी व्हाट इज पॉइंटर? Can you tell me what is pointer? What is pointer? Point to an address. Yes, ठीक है. It is again a variable. ठीक है, pointer is again a variable. ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. So what we are saying, what is a pointer? Pointer is again a variable. It is simply a variable, but this variable store a special value that is called the address of another variable. Address of another variable or address of array, है ना? Address of function, address of structure, address of any user defined data type. Any user defined data type. So it is your, ठीक है, ये आपका क्या है? सिंपली इट इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी एंटिटी दैट वी डिक्लेयर वी क्रिएट इन द सी प्रोग्रामिंग. तो सिर्फ एक वेरिएबल की बात नहीं करेंगे. वी हैव pointer for the array, we have pointer for the structure, we have pointer for the union, we have pointer for the user defined data type, we have pointer for the function जो हम लिखेंगे. So this is your the, this is pointer.
पॉइंटर क्या है? इट इज सिंपली अ वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. सो यदि मैंने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज इंटीजर ए एंड अलोकेटिंग सम वैल्यू टू इट, होता कैसे है? ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन बाइंड होता है एंड दैट वैल्यू स्टोर्ड एट दैट लोकेशन एंड इट इज असाइन्ड टू द नेम अरे. So if I will say what is the address of A, what is the address? ये क्या होता है आपका address of operator. Ampersand is called the address of operator. So if you will say what is address of A, it is 2002. Now I can declare a pointer variable. ठीक है, मैं एक pointer variable किस तरीके से declare करते हैं? We should have a data type. Data type specify करिए. Then write the asterisk that is representing it is a pointer type of data. And then give the name of the pointer. ठीक है, जो भी आपको देना है. So here I have declared IPTR, and in IPTR I am storing the address of it. ठीक है, so IPTR को भी एक memory location allocate होगा. It will also get the memory location, but the value of IPTR 2002, which is our address of variable A. ठीक है, so pointer is a variable that store the address of another variable, but it have also memory location. ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, यदि मेरे पास पॉइंटर का भी एड्रेस है, if I have a address of a pointer, can I create a different pointer to point it? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि if I have address of this pointer, since I have address of this pointer, can I create another pointer that will point to this pointer that can store the address of this pointer? क्या ऐसा कर सकते हैं? Yes, very good. ठीक है, so I can declare one more pointer, suppose integer and then pointer of pointer. I need to use 2 star pointer of pointer, and then I am writing suppose the name of it is called the pointer. Now this will be able to, ठीक है, again इसके लिए भी memory allocate होगी. The name of pointer is pointer, suppose it is 606 या 6000, and now it will be able to store the address of IPTR. So IPTR का एड्रेस कितना है? 4006. इट इज कॉल्ड दी पॉइंटर चेनिंग, इसको आप चेनिंग भी बोलते हो, एंड इट इज पॉसिबल. ठीक है, ये पॉसिबल है. नाउ एम्परसेंड ऑपरेटर ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, इट विल गिव यू द एड्रेस ऑफ एलिमेंट. ठीक है, आपको सिर्फ एड्रेस देता है. वी यूज द %x टू राइट डाउन द एड्रेस. ठीक है, %x या %u का यूज करते हैं, %x या %u to specify the address. Okay, so %u in place of %x can be used to specify address in decimal, है ना, in place of hexadecimal. x किसमें देगा? hexadecimal में एड्रेस देगा. करके देखें. ठीक है, तो सपोज I have three variable int a equal to 100, सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ. ठीक है, कॉमा b equal to 200 and c is equal to 300. If I want to print the address, printf, ठीक है, we are writing address of a equal to, I can use %x for hexadecimal notation, comma I will write ampersand. ठीक है, मैं यहाँ क्या यूज कर रही हूँ? ampersand of a. Okay, similarly we could have address of A, we could have address of B and C as well. So ये आपका हो जाएगा B के लिए, and you have the address in B, और ये आपका हो जाएगा C के लिए. तो ये हो जाएगा address of variable C. रन करके देखते हैं. So it will give you the न्यू लाइन का यूज नहीं करना, गलत बात है. /n, ठीक है, we have /n and we have /n. So now it is giving you the address that is of hexadecimal format. ये hexadecimal format में है, ये hexadecimal format में है. ठीक है,
but when you will use percent u, ठीक है, when you are using in percent u not x, what will be the output? Now it is in decimal. डिफरेंस क्लियर है विशाल सर? ठीक है, इफ वी विल यूज percent u, it will give you the address in decimal. If you will use percent x, then it will give you the result in hexadecimal. Hexadecimal. Now I can create the pointer for them. ठीक है, suppose I am writing pointer. हाँ, एक चीज और, if I want to store the address of address of integer variable, if I want to, ध्यान से सुनिएगा, if I want to store the address of integer variable, I need the pointer of type integer. मुझे किस टाइप का लगेगा? मुझे इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर रिक्वायर्ड होगा. आई एम राइटिंग APTR फॉर A pointer. I am writing BPTR for the B pointer, and I am writing CPTR for the C pointer. ये मैंने अपने मन से दिया है. Now APTR is equal to, we will store the address of A. लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. ठीक है, BPTR equal to address of B, and then CPTR equal to address of C. Now use the pointer in place of ampersand. ठीक है, ampersand की जगह APTR लिख दो. APTR लिख दो, यहाँ आप लिख दीजिए BPTR. Now it is a pointer variable, and here you can write CPTR. The output will, यहाँ x लिख देती हूँ. The output will remain same. Output will remain same. ठीक है, it will remain same. Got it? समझ में आया? So this is what the working of pointer. ये pointer की working है. You can use either x or you can use u. U for the decimal number, x for the hexadecimal, u for the decimal number. मैम सर मैंने रिपोर्ट किया है, और आपको वो भी बोला था ना मैंने कि आप मोबाइल पर यूज कर रहे हो, लैपटॉप पर? आप इग्नो नाइट एक इनकॉग्निटो मोड में खोल कर देखिएगा. ठीक है, इनकॉग्निटो मोड पर आप क्लास ओपन करके देखिएगा वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, बिकॉज उन्होंने मुझे यही सॉल्यूशन दिया था. ठीक है, सो दिस इज योर, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज योर पॉइंटर. ठीक है, ये आपका होगा पॉइंटर. नाउ सी, पॉइंटर से भी हमने देख लिया, पॉइंटर से भी हमने देख लिया. नाउ हाँ, कैसे डिक्लेयर करते हैं? आई टोल्ड यू. ठीक, डेटा टाइप, देन पॉइंटर ऑफ, ठीक है, एंड देन द पॉइंटर नेम. पॉइंटर नेम. चलिए, अब एक चीज मुझे बताइएगा. ठीक है, आपको आंसर करना है. वेदर इट इज गोइंग टू वर्क और नॉट. ठीक है, क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? और देयर विल बी एनी एरर? देयर विल बी एनी एरर? Whether it is correct or there will be any error?
देखें, चलो प्रिंट भी कर लेते हैं पीटीआर, एफ पीटीआर को प्रिंट भी कर लेते हैं ना, एफ ए पीटीआर प्रिंट भी करके देख लेते हैं टाइप कास्टिंग होगा कि नहीं होगा। सो हियर यू हैव एफ ए पीटीआर, ठीक है। हाँ, सो हियर वी हैव, यस इट इज वर्किंग, ठीक है, टाइप कास्टिंग हो गया, टाइप कास्टिंग हो गया। कैरेक्टर में भी ले रहा है। एक्चुअली देखिए, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो होता है, ठीक है, यहाँ यस इट इज परफॉर्मिंग द टाइप कास्टिंग, बट अकॉर्डिंग टू द टर्बो C3, ठीक है, जो हमको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि टू स्टोर द एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल, ठीक है, अभी ये वर्किंग में है, बट टू स्टोर द एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल वी शुड हैव पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है, हमारे पास जो पॉइंटर होगा वो इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। दिस इज थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली इट इज वर्किंग। थियोरेटिकली ये क्या कहता है कि वी शुड हैव द पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है, वी हैव द पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर। सो सिंस इट वाज नॉट वर्किंग, तो हम यहाँ यूज करते हैं वॉइड पॉइंटर का, ठीक है, वॉइड पॉइंटर का, वॉइड vptr, it will be able to store the address of any type of variable vptr, जैसे अभी तो आपका ये भी वर्क कर रहा है, vptr is also working, void pointer can store the address of any type of variable। अच्छा, एक चीज और करके देखूं पहले मैं, फिर टाइप कास्टिंग की बात करेंगे, ठीक है। सपोज आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, so I will write %d because it is an integer number, and then I will write, ठीक है, I will write asterisk of APTR, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए आप प्रिंट करा रहे हो, फिर मैं आपको इसका रोल समझाती हूँ, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए, asterisk of APTR, ठीक है, देखिए क्या आउटपुट आता है। सो हियर वी हैव वैल्यू ऑफ ए इज 100, ठीक है, यहाँ आपको वैल्यू ऑफ ए क्या मिला, 100 मिला, ठीक है, यहाँ आपको वैल्यू क्या मिला, वैल्यू ऑफ ए आपको 100 मिला। अब इसी चीज को आप यदि FPTR से प्रिंट करें तो क्या हमें सेम रिजल्ट मिलेगा? सो यस वी हैव सेम रिजल्ट, ठीक है। तो यस इट इज टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग हो रहा है, बट भाई देखिए कॉन्सेप्ट में, अपने जो बुक का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि pointer defined to be a specific data type cannot hold the address of any other data type। ये कॉन्सेप्ट है, ये थियोटिकल है। क्या कह रहे हैं, पॉइंटर ऑफ अदर स्पेसिफिक डेटा टाइप कैन नॉट होल्ड द एड्रेस ऑफ अदर डेटा टाइप। सो इफ वी हैव पॉइंटर फॉर द फ्लोट वेरिएबल एंड आई हैव वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है, बट ये वर्क कर रहा है इफ वी हैव टाइप इंटीजर, लेकिन यदि एग्जाम में आता है तो आप थियोटिकल ही जाइएगा, ठीक है। सो if it is of type integer and if I will try to assign the address of integer variable into the float pointer, it will be a error message, ठीक है, error message होगा। so to solve this problem we use the void pointer। हम किसका यूज करते हैं, void pointer, because जो void data type है, void data type do not have any type, so we can store the address of any type of variable। जब आप void pointer डिक्लेयर करेंगे, now you have integer variable, I variable, double variable। now in the vptr I can store the address of integer, I can store the address of double, ठीक है, मैं इंटीजर भी स्टोर कर सकती हूँ, मैं डबल भी स्टोर कर सकती हूँ। ओके, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, थियोटिकल कॉन्सेप्ट है। ये क्या कहता है कि भाई यदि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, to store the address of integer variable my pointer should be also of type integer। if float type of variable is there, to store the address of float variable pointer should be, the pointer should be of float type, ठीक है, ये float type का ही होना चाहिए। ये आपका थ्योरी है, ये आपका थ्योरी है, ठीक है भाई। मॉडर्न कंपाइलर है, एडवांस्ड है, इट कैन एक्सेप्ट एनीथिंग। नाउ सी वन मोर थिंग,
एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। इन दिस प्रोग्राम मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा है द वैल्यू ऑफ ए, है ना, वैल्यू ऑफ ए, और उस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम यूज कर रहे हैं पॉइंटर का। हम ऐसा तो नहीं लिख रहे ना कि वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए, और यदि हम चाहें तो ए लिखेंगे, सो आई विल गेट आउटपुट दैट इज 100। बाकी सारा कमेंट कर देते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। सो लाइक यू कैन सी, है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब हमारे पास सिर्फ एक की वैल्यू हमको प्रिंट करना है, आई कैन राइट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए, और ए प्रिंट हो रही है आपकी 100, ठीक है, आपका प्रिंट हो रहा है 100। नाउ इफ आई वांट टू प्रिंट दिस वैल्यू थ्रू द पॉइंटर, यदि मैं पॉइंटर का यूज करना चाहूँ, इन दैट केस आई विल राइट द नेम ऑफ पॉइंटर, जैसे हमने यहाँ लिखा APTR, एंड बिफोर दैट आई विल प्लेस द एस्ट्रिक सिंबल, ठीक है, उसके पहले हम क्या लगा देंगे, एस्ट्रिक सिंबल, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द डीरेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर। इसको आप क्या बोलते हो, डीरेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर। देखो आप मुझे बताना, यदि मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूं APTR, यदि मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूं APTR, इन दिस केस आउटपुट क्या होगा, यदि हम सिर्फ लिख रहे हैं APTR, इन दिस केस आउटपुट मिलेगा एड्रेस ऑफ, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस प्रिंट होगा। लेकिन यदि हमने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया स्टार और एस्ट्रिक बिफोर द APTR, so it will give you the value that stored in that location, ठीक है, उस लोकेशन पर जो वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू आपकी यहाँ प्रिंट होती है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द डीरेफरेंसिंग ऑफ द पॉइंटर। इसको आप क्या बोलते हो, डीरेफरेंसिंग ऑफ द पॉइंटर। क्लियर है, ठीक है, सो आई कैन राइट, ठीक है, एक काम करते हैं, नाउ आप मुझे बताना वैल्यू एट सी, ठीक है, we have CPTR equal to, I am writing value at APTR multiplied with, okay, multiplied with 4, and if I will try to print the value of A, ठीक है, value of C print कर लेते हैं, value of C, value of C, C print होगी आपकी, C print होगी D से, ठीक है, CPTR से, हाँ, क्या एक काम करेगा, और इफ यस देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, ठीक है। देखो जब आपने लिखा प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ %u APTR, है ना, सो यहाँ आपने लगाया डी रेफरेंस एट APTR में जो वैल्यू है उसको प्रिंट किया 100। नाउ आई एम सेइंग कि CPTR का जो लोकेशन है उसमें APTR की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करिए एंड देन गिव मी द रिजल्ट, ठीक है। तो अब देखो, अब हम ये नहीं लिख रहे कि A मल्टीप्लाइड विथ 4, आई कैन डू दिस एज वेल। मैं यहाँ पर अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, APTR को रन करते हैं। सो वैल्यू ऑफ A इज 100 एंड वैल्यू ऑफ C क्या मिला आपको, 400। वैल्यू ऑफ C आपको क्या मिला, 400। यदि आप सिंपली A लिखते तो भी रिजल्ट यही आता, ठीक है, तो भी रिजल्ट यही आता। देख लीजिए, वैल्यू ऑफ A इज 100 एंड वैल्यू ऑफ C इज 100, बट यदि मैं पॉइंटर के थ्रू वो वैल्यू एक्सेस करना चाह रही हूँ, सो आई एम राइटिंग एस्ट्रिक ऑफ APTR, पॉइंटर की नेम के पहले एस्ट्रिक लगा दीजिए एंड रन इट, तो यू आर गेटिंग 400। यदि आप एस्ट्रिक नहीं लगाओगे तब देन इट विल बिकम पॉइंटर, ठीक है, ये पॉइंटर बन गया, ये पॉइंटर है, इट इज एन एरर। I want to read the value at that location, so I will use dereferencing। अब आप इसको क्या बोलने लगे, it is a dereferencing operator, ये dereferencing operator है। तो now it is printing what it, समझ में आया कैसे dereferencing वर्क करता है into the pointer, ठीक है, how the dereferencing is working into the pointer। चलिए, we will continue tomorrow।
ठीक है, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा ये चीजें। आज का कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए। डीरेफरेंसिंग, accessing the data in a memory location pointed by a pointer, pointed by a pointer, ठीक है। so if I am writing asterisk of iptr, it will give me 300। मैं असाइन कर रही हूँ, फिर मैं प्रिंट करूंगी तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 300। चलिए बताइए, आज के सेशन में कोई पॉइंट जो रिपीट करना है? इसको रिवाइज करके आइएगा, सिर्फ पॉइंटर रिवाइज कर लेंगे। मैम परसेंट एक्स इज अ स्पेसिफायर, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जस्ट लाइक आप परसेंट डी का यूज करते हो, तो परसेंट डी का यूज किसके लिए होता था? परसेंट डी टू प्रेजेंट द इंटीजर वैल्यू, है ना, इंटीजर वैल्यू। अब जो रिजल्ट, जो आपका एड्रेस होता है इन मेमोरी, इफ आई वांट टू प्रिंट दैट एड्रेस इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, आई विल यूज परसेंट एक्स, percent x, and if I want to print that address into the decimal, then I will use percent u। ठीक है, तब मैं क्या यूज करूंगी? परसेंट यू। ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ, पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ। एंड करूँ सेशन फिर? ओके, थैंक यू एवरीवन।